السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لاسٹ ویڈیوز میں ہم تختی نمبر 3 پڑھ رہے تھے اور تختی نمبر 3 میں ہم نے حرکتوں کے بارے میں یعنی کہ زبر اور زیر اور پیش کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ نے ان اسباق کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم تختی نمبر 4 سٹارٹ کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، تو میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی نمبر 4 ہے اور تختی نمبر 4 میں آج ہم حروف مدہ پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ والا جو سبق ہے یہ الف کے بارے میں ہے، اگلا جو سبق آئے گا وہ یا کے بارے میں آئے گا، اور یہ والا جو سبق آئے گا یہ حروف مدہ واو کے بارے میں آئے گا۔ تو آج کا جو سبق ہے یہ حرف مدہ الف کے بارے میں ہے، تو ہم اسی سبق کو آج اچھے سے پڑھتے ہیں۔ تو جب بھی کسی حرف کے ساتھ الف ملا ہوا ہوگا تو آپ کو وہ حرف کھینچنا ہے۔ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے الف سے لے کر کے یہاں تک پڑھا ہے، یہ سارے وہ سبق آپ نے پڑھے ہیں جو بالکل بھی کھینچے نہیں جاتے، یعنی کہ ان سبقوں میں کسی بھی حرف کو نہیں کھینچا جاتا۔ آپ نے حرکتوں کا سبق پڑھا، حرکتوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان حروفوں کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھے ان سبقوں کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سبق ہیں یہ آپ کو نہیں کھینچنے ہیں۔ مگر آج کا جو سبق ہے اس سبق میں آپ کو اس حرف کو کھینچنا ہے جس حرف کے ساتھ میں الف ملا ہوا ہوگا۔ جیسا کہ یہ حمزہ ہے، حمزہ کے ساتھ ہم نے حرف مدہ الف ملا دیا۔ حرف مدہ آپ کو اچھے سے رٹ لینے ہیں۔ حرف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ تو یہاں حمزہ ہے، حمزہ کے ساتھ حرف مدہ الف ہے، ہم نے حمزہ کے ساتھ حرف مدہ الف ملا دیا۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ جو حمزہ ہے یہ کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، جیسا کہ حمزہ، الف، زبر، اگر ہم اس کی بات کریں جیسے کہ یہ ہے حمزہ زبر آ، تو یہاں آواز نہیں کھچ رہی تھی، یعنی کہ آواز لمبی نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے کہ یہ ہے حمزہ زیر ای، تو اس میں بھی آواز نہیں کھچ رہی تھی، مگر جب ہم نے حرف کے ساتھ میں حرف مدہ الف کو لگا دیا تو سمجھیں کہ وہ حروف کھچے گا۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا کہ پہلے آپ کو حرف پڑھنا ہے، اس حرف کے بعد آپ کو حرف مدہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو حرکت پڑھنی ہے۔ جیسے کہ حمزہ، الف، زبر، تو دیکھیں ہم نے پہلے حمزہ کو پڑھا ہے، اس کے بعد ہم نے حرف مدہ الف کو پڑھا، پھر ہم نے حرکت کو پڑھا، پھر ان تینوں کو ملا کر کے جو آواز آئی ہے وہ پڑھی۔ ایسے ہی با، الف، زبر، با، تا، الف، زبر، تا، ثا، الف، زبر، ثا، جیم، الف، زبر، جا، حا، الف، زبر، حا، خا، الف، زبر، خا، دال، الف، زبر، دا، ذال، الف، زبر، ذا، را، الف، زبر، را، زا، الف، زبر، زا، سین، الف، زبر، سا، شین، الف، زبر، شا، صاد، الف، زبر، صا، ضاد، الف، زبر، ضا، قا، الف، زبر، قا، زوا، الف، زبر، ضا، عین، الف، زبر، عا، غین، الف، زبر، غا، فا، الف، زبر، فا، قاف، الف، زبر، قا، کاف، الف، زبر، کا، لام، الف، زبر، لا، میم، الف، زبر، ما، نون، الف، زبر، نا، واو، الف، زبر، وا،
हा अलिफ जबर हा या अलिफ जबर या। तो आज के सबक को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले पार्ट में तो हरूफों को अलग अलग रखा गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट में हरफों को एक जगह मिलाकर के एक लफ्ज बना दिया गया, जैसा कि आप देखें जा अलिफ जबर जा, उसके बाद है दाल जबर दा। तो आप देखें कि जा अलिफ जबर जा, इसको और दाल जबर दा, इन दोनों हरूफों को एक साथ मिला दिया गया तो ये बन गया ज़ादा। आप देखें जा अलिफ जबर जा, इसकी आवाज है जा, दाल जबर दा। आप दाल को देखें, दाल नहीं खींचना है इसलिए कि दाल के ऊपर सिर्फ हरकत है, दाल के साथ में अलिफ मिला हुआ नहीं है। अगर दाल के साथ में अलिफ मिला हुआ होता तो समझ लें कि दाल भी खिंचता। अब दाल के साथ में अलिफ नहीं है, दाल के ऊपर जबर की हरकत है, तो आपको दाल नहीं खींचना है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया। तो जा है, जा के साथ में अलिफ मिला हुआ है तो आपको सिर्फ जा खींचना है, दाल नहीं खींचना है। जाल अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, ज़ादा। ऐसे ही ख्वा है, ख्वा के साथ में हमने हरफे मद्दा अलिफ मिला दिया। एक बात आप और याद रखें, हरफे मद्दा अलिफ जहां भी होगा, यानी कि जब भी किसी हरफ के साथ हरफे मद्दा अलिफ आएगा तो समझें कि अलिफ से पहले जबर होगा। आप ऐसे समझ लें कि जब भी किसी हर्फ के साथ में अलिफ आएगा तो अलिफ से पहले जबर होगा, तो आपको फौरन समझ जाना है कि ये हरफे मद है। और हरफे मद के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि हरफे मद्दा अलिफ से पहले जबर होगा तो वो खींचकर पढ़ा जाता है, जैसा कि खौ अलिफ जबर खौ। यहाँ ख्वा है, ख्वा के साथ हमने हरफे मद्दा मिला दिया। अब इस हरफे मद्दा से पहले क्या है? जबर है, तो आपको समझ जाना है कि ख्वा खींचेगा। तो अब पढ़ा जाएगा ये ख्वा जबर खौ अलिफ जबर खौ, फा जबर फा। ये आपको फा नहीं खींचना है इसलिए कि यहां हरफे मद्दा अलिफ नहीं है। अगर यहां हरफे मद्दा अलिफ होता तो आपको खींचना होता। अब ये पढ़ा जाएगा खौफा। ऐसे ही ता अलिफ जबर ता, ये खींचेगा इसलिए कि अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है। बा जबर बा, ताबा। ऐसे ही जीम अलिफ जबर जा, जीम के साथ में हमने अलिफ मिला दिया और अलिफ से पहले जबर है तो आप समझ लें कि हरफे मद्दा अलिफ है, तो आपको खींचना है जा। हा जबर हा, जा हा। दाल जबर दा, जा हा दा। ये हा और दाल नहीं खींचना है। हरकतों के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जबर जेर और पेश ये खींचते नहीं हैं। ऐसे कि हा अलिफ जबर हा, ये खींचा जाएगा इसलिए कि हा है, हा के साथ में अलिफ है और अलिफ से पहले जबर है, तो आपको समझ लेना है कि खींचेगा। हा अलिफ जबर हा, सीन जबर सा, हा सा। बा जबर बा, हा सा बा। जीम पेश जू। अब देखें जीम है, ये जीम पेश जू, ये नहीं खिंचेगा इसलिए कि जीम है और जीम पे हरकत पेश की है। अब नून अलिफ जबर ना, नून के साथ में हमने अलिफ मिला दिया तो ये समझ लें कि नून खिंचेगा, जीम नहीं खिंचेगा। अब पढ़ा जाएगा जीम पेश जू, इसकी क्या आवाज है? जू। नून अलिफ जबर ना, इसकी क्या आवाज है? ना। अब पढ़ा जाएगा जू ना, हा जबर हा, जुनाह। ऐसे ही शीन अलिफ जबर शा, रा जबर रा, शारवा। बा जबर बा, शारवा बा। ऐसे ही फा जबर फा, रा अलिफ जबर रा, फरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं फा खिंचेगा या नहीं खिंचेगा तो आपका जवाब होगा कि फा नहीं खिंचेगा। मैं आपसे पूछूं कि बताएं फा क्यों नहीं खिंचेगा तो आपका जवाब होगा कि फा के ऊपर हरकत है और कभी भी हरकतों को खींचा नहीं जाता। तो फा जबर फा, रा अलिफ जबर रा। तो अगर मैं रा के बारे में आपसे क्वेश्चन करूं कि बताएं रा खिंचेगा या नहीं खिंचेगा तो आपको बताना है कि रा खिंचेगा, इसलिए कि रा अलिफ के साथ मिला हुआ है और
हमने आपको बता दिया जब भी कोई हर्फ अलिफ के साथ मिला हुआ आएगा और अलिफ से पहले जबर होगा तो आपको समझना है कि वो हर्फ खींचेगा। तो पढ़ा जाएगा फा जबर फा, रा अलिफ जबर रा, फर गैन जबर गा, फर। ऐसे ही खा अलिफ जबर खा, दाल जबर दा, खादा, आइन जबर आ, खादा। अगर इस हर्फ के बारे में मैं आपसे पूछ लूं कि बताएं इनमें कौन सा हर्फ खिंचेगा, तो आपको फौरन बता देना है खा। ऐसे ही कौफ अलिफ जबर क़ा, ता जबर ता, क़ाता, लाम जबर ला, क़ातला। ऐसे ही स्वाद अलिफ जबर स्वा, बा जबर बा, स्वाबा, गा जबर गा, स्वाबा। ऐसे ही ता जबर ता, आइन अलिफ जबर आ, ता, लाम जबर ला, ताला। अगर मैं आपसे इस लफ्ज के बारे में क्वेश्चन करूं कि बताएं इस लफ्ज में कौन सा हर्फ खिंचेगा, तो आपको सही से सोचना है, दिमाग लगाना है, उसके बाद आपको बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इसमें कौन सा हर्फ खिंचेगा, तो आपको फौरन सोच के बताना है कि आइन, इसलिए कि जब भी हर्फे मद्दा अलिफ से पहले जबर होगा तो खिंचेगा। यह कायदा आप अच्छे से याद कर लें कि हर्फे मद्दा अलिफ से पहले जबर हो तो खींचा जाता है। क्या है कायदा? हरफे मद्दा अलिफ से पहले जबर हो तो खिंचेगा। अब हरफे मद्दा कौन है? अलिफ है, और हरफे मद्दा अलिफ से पहले जबर है, तो समझने के कायदे के मुताबिक है तो यह हर्फ खींचा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे इस लफ्ज के बारे में बात करूं कि बताएं इस लफ्ज में कौन सा हरूफ खिंचेगा, तो आपको फौरन बता देना है शीन, इसलिए कि हरफे मद्दा अलिफ से पहले जबर है, और हम पढ़ चुके हैं कि हरफे मद्दा अलिफ से पहले जबर हो तो खिंचेगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे इस लफ्ज के बारे में पूछूं कि बताएं इस लफ्ज में कौन सा हरूफ खिंचेगा, तो आपको फौरन बता देना है नून। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं नून क्यों खिंचेगा, तो आपको देखना है कि ये नून कायदे के मुताबिक है या नहीं। आपको हिसाब लगाना है। हमारा कायदा ये है कि हरफे मद्दा अलिफ से पहले जबर हो तो खिंचेगा, यानी कि जब भी किसी हर्फ के साथ में अलिफ आएगा तो उस अलिफ से पहले जबर होगा। अगर उस अलिफ से पहले जबर है तो आपको फौरन समझ लेना है कि वो हरूफ खींचना है। तो अब ये नून अलिफ के साथ मिला हुआ है और इस नून से पहले जबर है, तो आपको समझ लेना है कि ये हर्फ खींचा जाएगा। तो आज के इस सबक में आपको पहला काम तो ये करना है कि आपको हरूफे मद्दा याद करने हैं। हरूफे मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको कायदा याद करना है। अगर आप कायदा याद नहीं करेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आप कुरान को अच्छे से पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। तो कायदा आपको याद करना है। कायदा ये है कि हरफे मद्दा अलिफ से पहले जबर हो तो खिंचेगा, यानी कि हरफे मद्दा अलिफ होगा और अलिफ से पहले जबर होगा, तो आपको फौरन समझ जाना है कि ये हर्फ खिंचेगा। जैसे कि आप देखें ये सीन है, अब सीन के बाद अलिफ है और अलिफ से पहले जबर है, तो आपको देखना है कि ये सीन कायदे के मुताबिक है या नहीं। कायदा हमारा क्या है? कायदा ये है कि हरफे मद्दा अलिफ से पहले, हरफे मद्दा अलिफ, हरफे मद्दा कौन है? अलिफ। हरफे मद्दा अलिफ से पहले जबर हो तो क्या होगा? खिंचेगा। अब यहां हरफे मद्दा अलिफ भी है और अलिफ से पहले जबर भी है, तो हरफे मद्दा अलिफ से पहले जबर हो तो खिंचेगा। तो आज का ये सबक आपको अच्छे से याद करना है। आपको हरूफे मद्दा याद करने हैं और कायदा आपको याद करना है, और इस सबक को बार बार आपको पढ़ना है। इस सबक की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। कल इंशाअल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे।